Hello बच्चों, today we are going to see our new topic Cartesian system from chapter number 3. But before this we will understand some basics. Okay, so all of you know about the number lines, that on a number line distance from a fixed point are marked in equal units, positively in one direction and negatively in other direction. Okay, the fixed point is called origin. Now, if someone asks you about a point which lies over here, this is a point P. So, what can you tell about this point? You can say that if the distance between this 0 to 1 is 1 unit, then this 1 to 2 will also be 1 unit. Then, in this situation, you can say that this point P is 4 units away from the origin. You can say that this P is 4 unit away from the origin. Simply, if there is a point, if there is another point Q, then you can say that this point Q is 6 unit away from the origin. Okay, so you can represent एनी पॉइंट दैट लाइज ऑन अ नंबर लाइन. कोई भी पॉइंट जो इस नंबर लाइन पे लाई करता है उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसको आप बता सकते हो. बट what about those point which actually does not lie on this number line? Okay, suppose करो यहाँ पे एक point है E. How can you tell or how can you represent this point A? In this situation, to represent this point A which lies on a plane, René Descartes, a mathematician, comes with an idea. He actually uses two such number line, one horizontal line and one vertical line. Okay, one vertical line and one horizontal line. He combined both the lines in such a way that the lines cross each other एट देयर जीरोस. ओके, उन्होंने क्या किया, सिंपली इस वाले लाइन को उठा के कहाँ पे रख दिया, ये जो जीरो है वहां से पास करा दिया उन्होंने. तो आपको कुछ इस टाइप से क्या मिला, डायग्राम आपको मिलता है. ओके, हियर द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस and the vertical line is called a y-axis. Okay, as we can see that these two axes divides the whole plane into four parts. Okay, these two axes divides the whole plane into four part, first, second, third and this one fourth. Okay, each of the part is called quadrant. इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. Okay, now as we can see that this plane consists of quadrant and the axis. The plane consists of quadrant and axis and such type of plane is called कार्टेशियन प्लेन. ये जो पूरा आपको दिख रहा है ये क्या कहलाता है, कार्टेशियन प्लेन कहलाता है, या इसी को ही हम कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं या हम इसको एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं. ओके, नाउ let us come to our basic question that if there is any point A which lies on a Cartesian plane, then how we can locate that point. Okay, so first of all we will measure the distance of this point A from the y-axis. We will measure the distance of A from the y-axis. Okay, इस y-axis से हम distance को measure करते हैं. तो ये देखो, ये जो A है वो इस y-axis से कितना दूर है, 1 2 3. यहाँ से कितना दूर है, ये 3 यूनिट्स के क्या है डिस्टेंस पे लोकेट है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ऐसा ब्रैकेट लगाएंगे हम लोग और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये 3 लिखेंगे. ओके, इन नेक्स्ट स्टेप वी विल मेजर द डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द एक्स एक्सिस. दैट ये जो पॉइंट ए है वो इस वाले एक्स एक्सिस से कितना दूर है. तो हमने देखा ये इस वाले एक्स एक्सिस से कितना दूर है, 1 2 3 4 यूनिट्स के डिस्टेंस पे है इस वाले एक्स एक्सिस से. तो कॉमा करके हम लोग क्या लगा देंगे यहाँ पे, यू.
ऐसा लगा देंगे, ठीक है। ये होगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट या इस पॉइंट का लोकेशन या इस पॉइंट को लोकेट करने का तरीका, ठीक है। इस वाले अगर आप पॉइंट को आप इससे ज्वाइन करते हो तो आपको कुछ ऐसा टाइप का दिखेगा। नाउ यहाँ से यहाँ तक कितना है 4 है, तो ये वाला भी कितने का होगा, यहाँ से यहाँ तक ये भी क्या होगा 4 होगा। और यहाँ से यहाँ तक अगर 3 है तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा 3 ही होगा। हियर दिस 3 इज कॉल्ड एब्सिसा और एक्स कोऑर्डिनेट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं, एब्सिसा बोलते हैं। और ये जो आपने अभी अभी निकाला है उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं, ऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है इसको। नाउ वी ऑब्जर्व दैट दिस 3 और दिस एब्सिसा is nothing but it just a perpendicular distance from the y axis। ये जो 3 है आपको इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बताता है, ठीक है, एब्सिसा। सिमिलरली दिस 4 is nothing but it tells you the distance from the perpendicular distance from the एक्स एक्सिस। ये देखो ये जो 4 है, ये जो ऑर्डिनेट है, ये जो वाई कोऑर्डिनेट है, आपको ये बताता है कि ये इस वाले एक्स एक्सिस से कितना दूर है। ये तो आप क्या बताया, ये 4 यूनिट के डिस्टेंस पे है, ऐसा हमको बताता है ये, ठीक है। नाउ लेट अस सी द एग्जांपल नंबर फर्स्ट फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। यहाँ पे हमको क्या दिए हुए हैं, एक कार्टेशियन प्लेन में कई सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। इन पॉइंट्स के हमको क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट बताने हैं इनके, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये वाले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस पॉइंट बी का एक्स एक्सिस के अलोंग वाई एक्सिस से ये कितना दूर है ये देखते हैं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है वो कितना दूर है इस वाले वाई एक्सिस से या ओरिजिन से कितना दूर है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग ये 4 कॉमा, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो पॉइंट बी है वो एक्स एक्सिस से कितना दूर है और वाई एक्सिस के अलोंग इसका डिस्टेंस मेजर करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं 1 2 3, तो ये क्या है 3 यूनिट के डिस्टेंस पे है। यहाँ पे 4 इसका एब्सिसा है और 3 इसका क्या है ऑर्डिनेट कहलाता है, ठीक है। और ये दोनों मिला के क्या कहलाते हैं, इस पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट कहलाते हैं, ठीक। सिमिलर थिंग वी विल डन हियर। सबसे पहले हम इस पॉइंट एम का एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस मेजर करेंगे कितना दूर है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है -1 -2 -3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -3 लिख देंगे, ठीक है। Similar thing we will done here. First of all we will measure the distance of this L along the x-axis, okay, -1 -2 -3 -4 -5। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम -5 लिख देंगे। Then we will measure the distance of this L along the y-axis। y-axis के along देखेंगे -1 -2 -3, तो ये क्या हो जाएगा -4, ये वाला आपका -4, ओके। Now let's come to this point। यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक कि एक्स एक्सिस के अलोंग इसका डिस्टेंस कितना है 3 है और वाई एक्सिस के अलोंग इसका डिस्टेंस कितना है -4 है इस पॉइंट का, ठीक है। एक्सिस के अलोंग ये कितना है 3 है और वाई एक्सिस के अलोंग ये कितना है तो -4 है। तो ये क्या हो गया 3 -4 हो गया, ओके।